everyone. I hope you guys are doing well. So today also we are going to solve questions related to teaching aptitude and we have already been solving questions इसी से related. So I'm pretty sure आज की क्लास में अभी तक हमने काफ़ी improve कर लिया होगा and बहुत सारे concepts we have already discussed. So this question that came in your November 2017 paper for your UGC NET is a very easy question जो कि objective of teaching and learning के साथ है and I ended my class telling you that how important objective, characteristics, maxims, these all things are. So the first question, which of the following set of statements best represents the nature and objective of teaching and learning? The codes are, we have teaching is like selling and learning is like buying. Teaching is a social act while learning is a personal act. Teaching implies learning whereas learning does not imply teaching. Teaching is a kind of delivery of knowledge while learning is like receiving it. Teaching is an interaction and it's triadic in nature, whereas learning is an active engagement in a subject domain. Now these are the options, very easy, and you need to tell me the right answer. I'll wait till the time you analyze the question yourself. नेचर एंड ऑब्जेक्टिव. नेचर क्या बोलता है, टीचिंग कैसी होती है. ऑब्जेक्टिव हम क्यों करते हैं टीचिंग, बच्चों को सिखाने के लिए. व्हाट वुड बी द राइट आंसर. Teaching is like selling and learning is like buying. Teaching is a social act while learning is a personal act. Teaching implies learning whereas learning does not imply teaching. Teaching is a kind of delivery of knowledge while learning is like receiving it. Teaching is an interaction and it is didactic in nature, it is tridactic in nature, whereas learning is an active engagement in a subject domain. So let me tell you the right answer. Right answer क्या है? Let us discuss that. The right answer is B. B is the right answer. 1, 2 and 3. Sorry, 2, 3 and 5. So 2, 3 and 5. So teaching is like selling. टीचर क्या कुछ बेच रही है, टीचर को सेल कर रही है कुछ नहीं, एंड लर्निंग कुछ खरीद रहे हो. तो ये एक सही, बिल्कुल सही डिस्क्रिप्शन नहीं है. टीचिंग इज अ सोशल एक्ट. दिस इज ट्रू. टीचिंग इज अ सोशल एक्ट. वी डिस्कस दिस इन द क्लास. टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग. टीचिंग क्या कर रहे हैं आप, लर्न करने के लिए हो रहा है. वेयर एज लर्निंग डज नॉट इम्प्लाई टीचिंग. लर्नर्स तो बिल्कुल भी आपको कुछ टीच नहीं करा रहे हैं ना, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है. 2 and 3 आर राइट. देन टीचिंग इज अ काइंड ऑफ डिलीवरी ऑफ नॉलेज वाइल लर्निंग इज लाइक रिसीविंग इट. लर्निंग क्या है, आप यहाँ पे लेकिन डिलीवरी ऑफ नॉलेज नहीं कर रहे हो, आप होलिस्टिक ग्रोथ कर रहे हो. क्या कर रहे हो, ओवरऑल ग्रोथ कर रहे हो. सिर्फ डिलीवरी करना क्या होता है, इंस्ट्रक्शन देना. यहाँ पे इट इज मच फर्दर, इसलिए 5 सही है. लर्निंग इज एन इंटरेक्शन बिटवीन 2 पीपल एंड आप उसे ट्राइडैक्टिक भी बोल सकते हो बिकॉज कॉन्टेंट एनवायरमेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. So that is why B. From the list given below, identify the learner characteristics which would facilitate teaching learning system to become effective. Choose the correct code. सबसे important learner characteristics. अब एक learner कैसा होना चाहिए, एक learner होना चाहिए highly motivated. क्या होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए उसके अंदर. एक लर्नर होना चाहिए जो खुद बहुत हार्ड वर्किंग है. क्या है, हार्ड वर्किंग है. वन लर्नर हु हैज अ गुड एप्टीट्यूड. उसका एप्टीट्यूड अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, लोकस ऑफ कंट्रोल इंट्रिंसिक होना चाहिए, साथ में वो हेल्पफुल होना चाहिए. राइट. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड लर्नर. इनमें से कौन सी फैसिलिटेट करेंगे लर्निंग सिस्टम को बेटर बनाने में, कि लर्न अच्छा होगा अगर स्टूडेंट क्या होंगे, एक्टिव लिसनर्स होंगे, अच्छे से बात करेंगे टीचर के साथ. तो उनमें से ही आपको चूज करना है. प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर, लर्नर्स फैमिली लीनेज, एप्टीट्यूड ऑफ अ लर्नर, लर्नर्स स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, लर्नर्स फूड हैबिट्स एंड हॉबीज एंड लर्नर्स रिलीजियस एफिलिएशन. इनमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं, ऐसे कोड्स हैं या फिर ऐसी चीजें होंगी जो यूज करके लर्नर एक एफिशिएंट सिस्टम बना देता है, अपना टीचिंग लर्निंग बेटर कर देता है. सो द राइट आंसर इज, these are the options. The right answer is A, that is 1, 3 and 4. 1, 3 and 4. कैसे, पहले ये भी डिस्कस कर लेते हैं एलिमिनेशन के थ्रू.
So prior experience of learner, what is basically done by the learner? First information, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, we call them as schemas. तो हम क्या करते हैं, स्कीमास, इस स्कीमा को हम मैच करते हैं आने वाले हर स्मॉल पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ. ये सारे पैकेट 1 पैकेट 2 ऑफ इंफॉर्मेशन है, हम उन्हें मैच करके एक न्यू नॉलेज बनाते हैं. क्या करते हैं, न्यू नॉलेज बनाते हैं. सो दीज आर व्हाट दिस मीन्स दैट द प्रायर नॉलेज इज इंपॉर्टेंट फॉर द न्यू नॉलेज. तो ए तो बिल्कुल होगा ही होगा, 1 तो डेफिनेटली होगा, जहां पे भी 1 नहीं है उसे हटा सकते हो. देन फैमिली लीनिएज, अब हमें क्या फर्क पड़ता है आपकी फैमिली में क्या क्या हो रहा है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसे कट कर दो. एप्टीट्यूड ऑफ अ लर्नर, डेफिनेटली आपका एप्टीट्यूड स्किल्स कॉम्पिटेंसी जरूरी है. फिर लर्नर किस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे है वो भी बहुत जरूरी है. उसके बाद उसकी फूड हैबिट्स, मैं उसकी फूड हैबिट्स का क्या करूंगी और मैं उसकी रिलीजियस हैबिट्स का क्या करूंगी. सो राइट आंसर क्या हो गया, 1, 3 and 4. Then assertion and reason. All teaching implies learning, and learning to be useful must be derived from teaching. 2 मिनट सोच लो इसके बारे में. assertion reasons के क्वेश्चन में 2 मिनट लेकर प्लीज उसे एनालाइज किया करो. एक बारी assertion रीड किया करो, एक बारी reason रीड किया करो, and also think and analyze that is the assertion pertaining to the reason and reason pertaining to the assertion. So right answer is C. C right answer है. A is true but R is false. Obviously जो भी आप लर्न कर रहे हो, वो आप जो भी आप टीच कर रहे हो लर्निंग के लिए कर रहे हो, अदरवाइज टीचिंग ही क्यों हो रहा है. टीचिंग कैन नॉट गो प्लेस विदाउट कैन नॉट बी देयर विदाउट लर्निंग. व्हाट विल आई डू इफ देयर आर नो लर्नर्स. एंड लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम टीचिंग. सो लर्निंग टू बी यूजफुल, आप क्या खुद ही सिर्फ टीचिंग से सीखते हो, कभी कभी आप ऑटोनॉमस डेवलपमेंट खुद भी करते हो. लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम टीचिंग, ऐसा जरूरी नहीं है. दिस इज फॉल्स एंड दिस इज ट्रू. तो एजुकेशन या लर्निंग अलग अलग तरीके से हो सकती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल एक्सेट्रा. ऑन द बेसिस ऑफ सबमिटिव टेस्ट. सबमिटिव टेस्ट कहाँ किया जाता है, सबमिटिव टेस्ट हमेशा एंड में किया जाता है. अ टीचर इज इंटरप्रेटिंग हिज और हर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ देयर वेलनेस लाइफ स्टाइल एविडेंट इन बिहेवियर. It is called as what? Formative assessment, continuous comprehensive evaluation, or is it norm reference testing और criteria reference test? So एक ऐसा summative test जिसमें टीचर इंटरप्रेट कर रही है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ देयर वेलनेस ऑफ लाइफस्टाइल दैट इज एविडेंट इन देयर बिहेवियर. Is it formative, continuous comprehensive evaluation, norm reference testing and criteria reference testing? ये भी easy है. It is D. Sorry, it should be B na. B should be the right answer. It is a continuous and comprehensive evaluation. ये criteria नहीं है. Okay, yeah, it should be criteria. So CCE होता है long period of time के लिए करना. It should be criteria reference test. Why? Because हमने criteria decide कर लिया है कि हम लोग wellness lifestyle evidence के basis पे सबको कर रहे हैं. हम यहाँ पे 2 लोगों को compare नहीं कर रहे हैं, but हम लोगों ने क्या किया है, हमने एक तरीके का criteria decide कर लिया. जैसे suppose हम लोगों ने, मुझे आपका एक टेस्ट लेना है, तो मैंने बोल दिया कि मैं यूनिट 1 से ही आपका टेस्ट ले रही हूँ. तो ये एक तरीके का क्या है, यूनिट 1 से टेस्ट लेना, या ये बोलना कि जो भी A+ लेगा इसका मतलब उसके 95+ आए हैं. ये सारे क्राइटेरियाज होते हैं. ठीक है. सो डी. Which one of the following is the key behavior? बारी बारी ये आता है पेपर में. Structuring, universal variety, using students idea and questioning. तो राइट आंसर सी है. बहुत इजी इंस्ट्रक्शनल वेराइटी यूज करना. लाइट्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सो सी इज द राइट आंसर. इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग कैन बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ. आप कैसे कह सकते हो कि टीचिंग इफेक्टिव है. कोर्स कवरेज, मैंने बहुत सारा कोर्स कवर कर दिया है. स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्टेड हैं. लर्निंग आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड यूज ऑफ टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम. टीचिंग एड्स क्या होते हैं? टीचिंग एड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज
इंस्ट्रक्शनल वेराइटीज, इंस्ट्रक्शनल वेराइटीज जैसे कि इट कैन बी ऑफ मल्टीपल टाइप्स. कैसे हो सकते हैं वो? ऑडियो हो सकते हैं, विजुअल हो सकते हैं और ऑडियो विजुअल हो सकते हैं. एंड लास्टली इट कैन बी एक्सपेरिमेंटल, जैसे कि मैं उनको फील्ड ट्रिप्स पे ले जाऊं. सो ऐसे इक्विपमेंट्स या ऐसे टूल्स जो मैं क्लास में यूज करके टीचिंग को इजी कर देती हूँ, उन्हें टीचिंग एड्स कहते हैं. ऑडियो मतलब जैसे मैंने पॉडकास्ट सुना दी, विजुअल्स मतलब मैंने आपको प्रोजेक्टर यूज कर लिया. और विजुअल के अंदर भी दो टाइप्स हैं, प्रोजेक्टेड या फिर नॉन प्रोजेक्टेड. ठीक है, ऑडियो विजुअल हो सकता है एंड एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट जैसे मैं आपको किसी फील्ड ट्रिप पे लेके गई हूँ, फील्ड ट्रिप पे ले गई, एक्सकर्शन ट्रिप पे ले गई, एटसेट्रा. राइट. सो द राइट आंसर शुड बी, यहाँ पे राइट आंसर शुड बी सी. सी शुड बी द राइट आंसर. द मेजर रोल ऑफ अ टीचर एंड द मेजर रोल टू से कि इफेक्टिव है टीचिंग. इफेक्टिव टीचिंग क्या हुई कि टीचिंग कंप्लीट हुई है. कोई भी कंप्लीट टीचिंग इफेक्टिव कब होती है? जब टीचर ने अपना गोल्स पूरे कर लिए, मतलब गोल्स आर मेट, गोल्स आर मेट, आउटकम्स आर सीन, गुड आउटकम्स आर सीन. तो इसको हम और भी क्या कहते हैं? स्टूडेंट इफेक्ट. टीचर ने अच्छा स्टूडेंट इफेक्ट कर दिया एंड स्टूडेंट सक्सेस रेट. तो यहाँ पे सी वुड बी द राइट आंसर. In which teaching method learners participation is made optimal and proactive? इसके अंदर learner किसमें सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन दिखाते हैं, मतलब सबसे ज्यादा इन्वॉल्व कहाँ होते हैं. और प्रोएक्टिव मतलब एक्टिव से भी एक्टिव हो जाना. डिस्कशन, बज सेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग और प्रोजेक्ट मेथड. अब डिस्कशन क्या होता है? टीचर ने ग्रुप्स बना दिए, G1, G2, एक टॉपिक दे दिया और आपको उस पर डिस्कशन करना है. दिस इज ग्रुप डिस्कशंस. बज मेथड होता है, टीचर ने ग्रुप्स बनाए और टाइम दिया, टाइम है आपके पास 1 मिनट का, इस टॉपिक के बारे में सोच लो. अब बहुत सारी बज की आवाज क्लास में आ रही है, उन्हें हम बज सेशंस कहते हैं. ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है जब टीचर ने आपको एक टॉपिक दिया, जैसे कि मैंने क्लास में एक टॉपिक दे दिया पॉल्यूशन, और अब मैं आपको बोल रही हूँ इस टॉपिक के बारे में पॉइंट्स लिखो, इससे सोचो. तो आप क्या करोगे? यहाँ पे लिखोगे एयर पॉल्यूशन, फिर लिखोगे वाटर पॉल्यूशन, एक टॉपिक से बहुत सारी चीजें, ब्रेनस्टॉर्मिंग. और प्रोजेक्ट मेथड हो गया, जैसे सपोज करो मैंने आपको मॉन्यूमेंट्स के बारे में एक प्रोजेक्ट बनाने को बोल दिया, दैट इज प्रोजेक्ट मेथड. तो राइट आंसर क्या है? डी बिकम्स द राइट आंसर. सबसे ज्यादा प्रोएक्टिव बच्चे कहाँ हो जाएंगे और पार्टिसिपेट करेंगे? आपके प्रोजेक्ट मेथड पे. वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू. टीचिंग की इफेक्टिवनेस क्या दिखाता है? सोशल सिस्टम ऑफ द कंट्री, इकोनॉमिक स्टेटस, प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम एंड एजुकेशन सिस्टम. What should be the right answer? इसके बारे में थोड़ा सा सोच सकते हो. Take some time, think about it. So one of the most powerful factors affecting teaching effectiveness is what? टीचिंग की इफेक्टिवनेस दिखाता है, डी वुड बी द राइट आंसर डेफिनेटली. उनका एजुकेशनल सिस्टम, कैसा एजुकेशनल सिस्टम है, मतलब कैसा हमने करिकुलम सोचा है, उसके अंदर कैसा फिर हमने सिलेबस सोचा, सिलेबस के अंदर हमने कैसे उनका लेसन प्लान करा, लेसन प्लान के अंदर कैसी टेक्स्ट बुक्स हैं, कैसा कोर्स स्ट्रक्चर है टीचर का, यही सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं. एंड यही क्रोनोलॉजी भी याद रखनी है. सबसे पहले करिकुलम, सिलेबस, लेसन प्लान एंड टेक्स्ट बुक्स. ओके. देन another question, formative evaluation tends to accelerate the pace of learning as against summative evaluation. Formative evaluation is highly reliable. Take some time, assertion reason का क्वेश्चन है.
So I'll give you 2 to 3 minutes to think about it. Okay, so the right answer would be C. C is the right answer. A is true but R is false. So formative assessment tends to accelerate the pace of learning. Yes, because हम क्या करते हैं, हम लोग ना बेसिकली हम लोग इसे मिडल में करते हैं और हम इसे करते हैं फॉर इम्प्रूवमेंट. किसके लिए करते हैं? इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं. दैट इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एक्सलरेट करता है हमारी पेस ऑफ लर्निंग, बेटर कर देता है. एज अगेंस्ट सबमिटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इज हाईली रिलायबल. ऐसा नहीं है, कोई भी एक सोर्स ऑफ असेसमेंट हाईली रिलायबल नहीं होता. सारे अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं, अलग अलग इंफॉर्मेशन देते हैं, किसी एक पे रिलाई नहीं किया जा सकता. दैट इज वाई आर फॉल्स है, लेकिन ए बिल्कुल ट्रू है. सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव विच कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग. कौन से फैक्टर्स टीचिंग को इफेक्टिव कर देते हैं? टीचर्स नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, टीचर्स सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, communication skill of the teacher, teachers ability to please the students, teachers personal contact with students, teachers competence in managing and monitoring the classroom transactions. पॉजिटिव फैक्टर्स जो टीचिंग को अफेक्टिव कर देते हैं, अफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग. Okay, let me tell you the right answer. So these are the codes. The right answer is D. D is the right answer. 1, 3 and 6. 1, 3, 1, 3 and 6. Again, एक ऐसे select the alternative which consists of positive factors of contributing effectiveness. Teachers knowledge of the subject is very needed. अगर टीचर को सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है तो वो कभी इफेक्टिव टीचिंग नहीं कर सकती है. टीचर का सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड बिल्कुल डिपेंड नहीं करता. इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि बैकग्राउंड क्यों ही जानना है, टीचर को सबको ही साथ पढ़ाना है. इंक्लूसिव क्लासरूम कैसे बनेगा नहीं तो. उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स, दीज आर द पर्सनल कॉम्पिटेंसीज ऑफ द टीचर. ये बहुत जरूरी है. टीचर्स एबिलिटी टू प्लीज द स्टूडेंट्स, टीचर स्टूडेंट्स को प्लीज करने नहीं आई है, उनको पढ़ाने आई है यहाँ पे, लेकिन गुड रिलेशन जरूरी है. टीचर्स पर्सनल कॉन्टैक्ट, टीचर यहाँ पे उनकी दोस्त बनने के लिए भी नहीं है. टीचर्स कॉम्पिटेंस विद मैनेजिंग द क्लासरूम एंड द क्लासरूम इंटरेक्शंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप यहाँ पे क्या पढ़ोगे? कॉम्पिटेंसीज ऑफ अ गुड टेचर. एक अच्छी टीचर की कॉम्पिटेंसी होती है जैसे कि अ गुड टीचर हैज अ गुड पर्सनल कॉम्पिटेंसीज. इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी होती है, टेक्नोलॉजिकली अच्छी होती है, एक करिकुलम से दूसरे करिकुलम को कलेक्टिवली पढ़ाने की कॉम्पिटेंसी होती है उनके अंदर. सो दीज आर इंपॉर्टेंट स्किल्स जो एक टीचर को जरूरी है होना ताकि वो इफेक्टिव टीचिंग करा सके. Then the use of teaching aids is justified for why. हम teaching aids क्यों use करते हैं? अभी I told you कि teaching aids जरूरी हैं. Teaching aids are the tools that are used in the class. I'll show you one picture teaching aid का. So teaching aids are what? Teaching aids are tools that are used in the class. For example, these are the basic equipments. For example, अगर टीचर आपको सिखाने के लिए क्लासरूम में क्या ले गई है? क्लासरूम में मैं वॉच ले गई हूँ, मैं कोई टूल्स ले गई हूँ. इनसे क्या होगा? मेरे को टीचिंग करने में ईजी होगा, क्लास मोनोटोनस नहीं होगी, टीचर ज़्यादा अच्छे से स्टूडेंट्स को पढ़ा पाएगी. These are the types of teaching aids that can be used in the class. Teacher can use boards, teacher can use materials या फिर शेप्स, गेम्स सिखाने के लिए. कोई भी चीजें किसी भी लेवल पे टीचर आपको पढ़ा रही हैं वो टीचिंग एड्स यूज कर सकती हैं.
So teaching aids are very important. They attract the students' attention in the classroom, minimizing indiscipline problems in the classroom, optimizing learning outcomes of the students, and effective engagement of students in learning task. So कहाँ पे हम लोग teaching aids का use कर सकते हैं और क्यों यूज करते हैं? C is the right answer, optimizing learning outcomes of the students. Now as I told you, teaching aids क्या हैं? These are the tools. ये tools हैं जो टीचर क्लास में यूज करती हैं. सबसे पहले इससे क्लास इफेक्टिव हो जाती है. इससे क्लास क्या होती है? Easy concepts. कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? ईजी हो जाते हैं. देन क्लास में टीचर बच्चों की अटेंशन को मैक्सिमाइज कर सकती है, क्लास को थोड़ा क्रिएटिव कर देते हैं, बच्चों की मोटिवेशन इंक्रीज होती है. ऐसे बहुत सारे डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं जिनको टीचर इजी करने का ट्राई करती है विद द हेल्प ऑफ टीचिंग एड्स. एंड यहाँ पे टीचर ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक समझा पाती है लेस टाइम में. सो टीचर्स को सबसे ज़्यादा हेल्पफुल क्या होता है? ऑप्टिमाइजिंग द लर्निंग आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट्स. The purpose of higher education is to promote critical and creative thinking abilities among the students. These abilities ensure job placement. Now, जैसे ही आप क्रिटिकल थिंकिंग समझते हो, ये सबसे पहले क्या बात कर रहा है? इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की बात कर रहा है. इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग. सो दीज आर दैट दोज लर्निंग्स वेयर द टीचर इज क्रिएटिंग अ रिफ्लेक्टिव एनवायरमेंट वेयर यू डू प्रॉब्लम सॉल्विंग, यू एनालाइज द थिंग्स, यू हैव क्रिटिकल थिंकिंग. दिस मीन्स यहाँ पे टीचर डाइवर्जेंट थिंकिंग भी करती हैं. क्या करती हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग यूज करती हैं, आपको क्रिएटिविटी इंस्टिल करती हैं. तो राइट आंसर क्या है? इट इज बी, दैट इज द राइट आंसर. सो ए एंड आर ट्रू, बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. सो द पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन, येस इट इज टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, लेकिन जरूरी नहीं है वो सिर्फ जॉब प्लेसमेंट के लिए हो, वो कभी कभी ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी होता है. हाँ, उससे आपकी एबिलिटी इंक्रीज हो जाती है जॉब प्लेसमेंट की, लेकिन उसका एक गोल सिर्फ यही नहीं है. सो बी बिकम्स द राइट आंसर. Then match the following: formative, summative, continuous and norm reference. I will stop here. मैं आपको टाइम दूंगी. ये क्वेश्चन आई वॉन्ट यू टू सॉल्व खुद से. ठीक है, तो 2-3 मिनट जितना लेना है आप इसे लो, इसे रीड करो एंड टेल मी द राइट आंसर ऑन योर ओन. Okay, let us discuss. So we have formative evaluation, summative evaluation, and we have continuous comprehensive evaluation and norm reference evaluation. So evaluating cognitive and co-cognitive aspects with regularity, test and their interpretations based on a group and certain yardsticks, grading the final learning outcomes and quizzes and discussions. So grading and final outcomes क्या होती हैं? Summative evaluation होता है. वो क्या होता है? Summative evaluation. ऐसे ही formative evaluation क्या होता है? आपकी quiz as well as your discussions are formative evaluation. Then we have continuous and comprehensive evaluation. So that is when you are doing what? जब आप रेगुलरली किसी की कॉग्निटिव एंड को कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज को चेक कर रहे हो. एंड नॉर्म एंड क्राइटेरिया रेफरेंस, वो क्या होता है? इट इज बेस्ड ऑन यार्डस्टिक्स, और आप ग्रुप के बेसिस पे उसको क्या करते हो? एनालाइज करते हो. इसके साथ साथ इप्सेटिव इवैल्यूएशन भी पता होना चाहिए. इप्सेटिव इवैल्यूएशन, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. इप्सेटिव असेसमेंट या इवैल्यूएशन क्या होता है? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ. आई थिंक ये क्लास में हमने डिस्कस भी किया है. इप्सेटिव असेसमेंट. So this is a kind of assessment. Ipsative assessment is an assessment where we judge our current performance with our past performance. हम हमारी करंट परफॉर्मेंस को पास्ट परफॉर्मेंस के साथ एनालाइज करते हैं, उससे इप्सेटिव बोलते हैं. इसे एक बार नोट कर लो, बिकॉज ये बारी बारी पेपर में आता ही है. इस बारी भी पूछा गया था. और
ओके, कैन वी गो फॉरवर्ड? ठीक है, तो आगे चलते हैं. ओके, सो अ college level assistant professor had planned his or her lectures with an intent to develop cognitive dimensions of the student centered on skills and analysis and synthesis. Below given are two sets of items. Set 1, that is the cognitive interactions, and set 2 comprising of the basic requirements for promoting them. Match the two sets and indicate your answer to choose the correct alternative of from the given code. इसे एक बार रीड करो, क्वेश्चन को दोबारा रीड करो. ओके, अ कॉलेज लेवल असिस्टेंट प्रोफेसर हैड प्लान्ड एक लेक्चर, वो क्या दे रहे हैं, एक लेक्चर दे रहे हैं विद एन इंटेंट टू डेवलप कॉग्निटिव डायमेंशंस, बच्चों के कॉग्निटिव स्किल्स को इंक्रीज करने के लिए, ऑफ स्टूडेंट सेंटर्ड ऑन स्किल्स ऑफ एनालिसिस एंड सिंथेसिस. गिवन बिलो आर टू सेट्स ऑफ आइटम्स. सबसे पहले सेट्स ऑफ आइटम्स है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. मेमोरी लेवल को कौन ज्यादा बूस्ट कर सकता है? अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल. बेसिकली ये सिर्फ लेवल्स के बारे में जान रहे हैं, बस क्वेश्चन को इतना डिफिकल्ट कर दिया है ताकि आप थोड़ा सा डर जाओ. तो गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स फ्रॉम अ पॉइंट, recording the important points made during the presentations, asking the students to discuss various items of information, critically analyzing the points to be made and discussed. Okay, सो क्या हम यहाँ पे मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल को अलग अलग करेंगे. इससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको ये पता होना कि सबसे पहले मेमोरी लेवल आता है. मेमोरी लेवल के बिना अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकता और उसके बिना रिफ्लेक्टिव नहीं हो सकता. तो तीनों लेवल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसके नीचे एक लेवल होता है कॉल्ड एज द ऑटोनॉमस लेवल. उसे क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस लेवल. ये वॉलेंटरली खुद ही ग्रोथ हो जाती है, पर यहाँ पे क्या हो जाता है, नेगेटिव ग्रोथ भी होती है क्योंकि बच्चा टीचर की हेल्प ही नहीं लेता है. तो राइट आंसर देखते हैं, बहुत ही इजी, सी इज द राइट आंसर. ए को मैच करना है 2, ए को मैच करना है 2 के साथ. मेमोरी लेवल पे हम क्या करते हैं, रोट लर्निंग करते हैं. तो रिकॉर्डिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आर मेड इन द प्रेजेंटेशन. बच्चा क्या करेगा, बच्चा जब उस प्रेजेंटेशन से, जो लेक्चर टीचर दे रही है, जब वो कोई चीज रिकॉर्ड करेगा या फिर जब वो लिखेगा, जब वो रोट लर्न करेगा, अपनी कॉपी में उसे लिख रहा है, वो क्या है, मेमोरी लेवल है. मेमोरी लेवल. उसी के तरीके से अंडरस्टैंडिंग होता है जब आप क्या करते हो, डिस्क्रिमिनेट करते हो एग्जाम्पल्स लेके. मतलब आप क्या कर रहे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप. ठीक है, एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल. अब मैं बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर रही हूँ अपने लेक्चर में. और सपोज एक इजी सा एग्जाम्पल लेते हैं. नेम प्लेस एनिमल थिंग खेल रहे हैं हम. मैंने बोला गार्डन. गार्डन क्या है, अरे मैम वो तो नेम है. आपको लग सकता है नेम है, नहीं, वो तो प्लेस है. तो आपने डिस्क्रिमिनेट किया, आपने रिलेशन समझे. यहाँ आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आ जाते हो. तो ये क्या है, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल का पार्ट है, अंडरस्टैंडिंग लेवल. एंड उसके बाद वी हैव फोर्थ, क्रिटिकली एनालाइजिंग. किसी चीज को क्रिटिकली एनालाइज करना क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल होता है. दैट इज रिफ्लेक्टिव लेवल. आप यहाँ पे क्या करते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो. यू डू प्रॉब्लम सॉल्विंग. Then which set of learner characteristic may be considered helpful in designing effective teaching learning system? आपको codes use करने हैं effective learning, effective teaching learning system, TL system के लिए. Prior experience of the students, interpersonal relations, ability to learn in respect to the subject, learners language background, interest of students in following in the prescribed dress code, and motivational orientation of the students. इनमें से कौन सी चीजें जरूरी हैं इफेक्टिव क्लासरूम के लिए? ऐसा ही सेम क्वेश्चन अभी डिस्कस किया है हमने. तो राइट आंसर देखते हैं, बी इज द राइट आंसर. 1 3 1 3 4 एंड 6. 1 1 3 4 एंड 6. प्रायर एक्सपीरियंस जरूरी है. बैंग ऑन, प्रायर एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट यू हैव. तभी आप नई नॉलेज को गेन कर पाते हो.
एबिलिटी फॉर द लर्नर्स टू रिस्पेक्ट द सब्जेक्ट, तभी तो मोटिवेटेड रहोगे, ये भी जरूरी है। स्टूडेंट्स लैंग्वेज बैकग्राउंड, अब मैं आपको इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ या हिंदी में पढ़ा रही हूँ, आपने कहा नहीं बंगाली में पढ़ना था आपको, तो यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स फॉलोइंग द ड्रेस कोड, मैं आपको ये बोल के आऊंगी नहीं जब आप ब्लैक पहन के आओगे तभी मैं आपको पढ़ाऊंगी, दैट इज इम्पॉसिबल फॉर अ टीचर टू डू एंड नॉट राइट फॉर अ टीचर टू डू, है ना। मोटिवेशनल ओरिएंटेशन, लोकस ऑफ कंट्रोल, यही है लोकस ऑफ कंट्रोल इंट्रिंसिक, मोटिवेशनल ओरिएंटेशन, ठीक है। सो क्या क्या सही हो गया, वी हैव प्रायर नॉलेज, एबिलिटी, लैंग्वेज एंड मोटिवेशन, ठीक है ना, ओके। greater the handicap of the students coming to the educational institutes, greater the demand on the, अगर बच्चे बहुत ज्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे फोकस करते हैं तो वो सबसे ज्यादा डिमांड कहाँ से आ रही है, टीचर की सबसे ज्यादा डिमांड किस पे करते हैं, फैमिली, सोसाइटी, टीचर या स्टेट। सो सी इज द राइट आंसर, इट इज टीचर। अगर स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स हैंडीकैप का मतलब है स्टूडेंट्स बहुत रिलाई करते हैं टीचर पे, ये क्या हो गया, फील्ड डिपेंडेंट लर्नर जैसा लर्नर हो गया है। तो यहाँ ग्रेटर डिमांड टीचर की हो जाती है, टीचर को बहुत अच्छी तरीके से चीजों को मैनेज करना पड़ता है। What are the characteristics of continuous and comprehensive evaluation, जिसे कहते हैं CCE, continuous, it stands for continuous। भाई एक बार रुको मत इवेल्युएट करके, चलते ही जाओ, keep on evaluating। Then comprehensive, what do we mean by comprehensive, मतलब डिटेल में एनालिसिस करो, डिटेल में जाओ और एनालाइज करो। एंड साथ में इवेल्युएशन, इवेल्युएशन मतलब इवेल्युएट इस तरीके से करो। It increases the workload on the students by making multiple tests. It replaces marks with grades. It evaluates every aspect of the student. It helps to reduce examination phobia. सो राइट आंसर सबको पता है डी होगा, ये तो बिल्कुल गलत है। वर्कलोड इंक्रीज नहीं, वर्कलोड कम करना है। इंटरडिसिप्लिनरी मल्टीपल टेस्ट जरूर होते हैं लेकिन इंटरडिसिप्लिनरी है। उसके बाद यहाँ पे ग्रेड्स देना स्टार्ट किया था टीचर ने, इवैल्यूएशन हुआ था टीचर का हर एस्पेक्ट पे, ऐसा कहा था कि हर चीज पे देखो ना, मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है, हार्वर्ड ने बोला, राइट। तो अगर मल्टीपल इंटेलिजेंस है हर चीज को एनालाइज करो और एग्जाम का फोबिया हटा दो, इसीलिए ही क्या इंट्रोड्यूस किए थे, ग्रेड्स इंट्रोड्यूस करे थे सीसीई के अंदर। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज एक बारी एनालाइज कर लेते हैं सीसीई के बारे में, सीसीई, ठीक है। अब यहां देखो, कंटिन्यूस स्टैंड्स फॉर रेगुलर कंटिन्यूस एक्टिविटीज दैट आर कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर टू सी द डेवलपमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव होता है मेंटल फिजिकल हर एस्पेक्ट में ग्रोथ देखना। इवैल्यूएशन होता है टूल्स यूज करके देखना कि टीचर कितना ज्यादा अच्छे से पढ़ा पाती है, दैट इज सीसीई, सीसीई। सो ये सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया था। सीसीई वाज अ ग्रेडिंग सिस्टम, जो it was a grading system that was introduced by CBSE. I don't think अब ये ओपन होगा, एक बार ट्राई कर लेते हैं। इसको ढूंढना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। एनीवे चलो कोई नहीं, हम यहीं पर ही देख लेते हैं। सो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, तो सीसीई ने कहा था कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना एस्पेक्ट एनालिसिस का, फॉर्मेटिव होता है, पीरियोडिकली भी देखेंगे, सबमिटिव होता है, स्कोलास्टिक एंड नॉन स्कोलास्टिक एक्टिविटीज में भी देखेंगे, दैट इज सीसीई। और वहां पे ग्रेडिंग सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस, इट इंप्रूव्स द लर्नर्स फ्रेंडली एनवायरनमेंट, इट इंप्रूव्स द इंस्ट्रक्शनल लेवल्स, इट इंप्रूव्स ग्रेडेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, it also sees the progress of the students, it helps to diagnose the strengths and the weaknesses, motivates the students। then यहाँ पे क्या होता है, it helps them to reduce the pressure and उनको creatively पढ़ाया जाता है, that is CCE, CCE कहलाता है वो। I wanted to read it एक बारी, अगर this was something I was looking for. Okay, so इसकी एक पूरी हैंडबुक है continuous and comprehensive evaluation की, if you want you can study this, it is very important especially from the examination point of view if you are giving any exams, जो teaching exams होते हैं ना उनके लिए। तो यहाँ पे क्या बात हुई है, किस तरीके से CCE आया है, तो CCE
CCE कहता है that there should be continuous and comprehensive evaluation, test diagnosing the gaps, use of collective measures, regular assessment, feedback from the teachers would also be given. So यहाँ पे हम कैसे levels पे move करते हैं, Bloom's taxonomy use करके हम आगे चलेंगे. Knowledge, understanding, that means comprehension, applying, analysis, evaluating and creating. So this is how continuous comprehensive evaluation are done. इसका ऑब्जेक्टिव क्या था इस स्कीम आने का? टू हेल्प डेवलप कॉग्निटिव, अफेक्टिव एज वेल एज साइकोमोटर डोमेन्स एंड स्किल्स, टू ले एम्फेसिस ऑन द थॉट प्रोसेस एंड डी एम्फेसिस मेमोराइजेशन, to make evaluation an integral part of teaching learning process, to use evaluation for improvement of the students achievement in the teaching learning strategies, regular diagnosis करेंगे, to use evaluation as a quality control, then to determine social utility, desirability or effectiveness of a program, to take appropriate decisions about a learner and the process of learning and learning environment, to make process of teaching learning a learner centered activity. ठीक है, तो ये एक important टॉपिक है. पहले ये पेपर में बहुत आता था, आजकल ये पेपर में इतना नहीं आ रहा है. आई वुड एग्री टू दिस, इतना ज्यादा नहीं आ रहा है. वाई? बिकॉज पहले तो हम हायर एजुकेशन के बारे में बात करेंगे ना, इसीलिए भी ये कम आता है पेपर में. बट दिस इज, ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, अपने आप में ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है. तो सीसी, अगर बीएड कोई पढ़ रहा है आप में से, तो सीसी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा. लेकिन हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? हायर एजुकेशन, है ना. तो हमारे लिए हायर एजुकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड हायर एजुकेशन तो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेयर हम लोग यूजी पीजी एडमिशंस के बारे में ज्यादा बात करते हैं. एंड ये तो सिर्फ एक नॉर्मल मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ. सो इस तरीके से अगर आप हायर एजुकेशन, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया है, ऐसे ही अगर आप MHRD के बारे में पढ़ोगे, MHRD, तब आपको काफी सारे इनिशिएटिव्स दिखेंगे. आई वुड सजेस्ट यू टू रीड MHRD की साइट अ लॉट. जैसे MHRD ने अभी नेशनल मीन्स का मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम स्टार्ट करी है, ये पेपर में आ सकता है. देन इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी स्टार्ट किया, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन स्टार्ट किया. एक्सेस डिनाइड है. आप इसे अपने फोन पे खोलोगे तो ये ओपन हो जाएगा. ओके, तो ट्राई टू रीड दिस. एक बारी MHRD की साइट को स्कैन करो और रीड करने का स्टार्ट कर दो, है ना. आगे चल सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स डिनोट ग्रेट स्ट्रेंथ्स फॉर अ टीचर? इजी है, बहुत इजी है. डायरेक्टली आंसर दिखाती हूँ मैं आपको. बी इज द राइट आंसर. 2, 3 एंड 4. सो टीचर को एग्जाम्पल्स देना है. फुल टाइम इन्वॉल्वमेंट नहीं होना इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट के साथ. मैनेजमेंट का इतने काम नहीं करने हैं, ठीक है. एंड देन विलिंगनेस टू पुट एजम्पशंस टू टेस्ट. अगर बच्चों को नहीं समझ आया तो विलिंग होना चाहिए कि भाई उसे सॉल्व करूंगी. एंड एक्नॉलेजिंग हर मिस्टेक्स. अगर उनको, टीचर कैन नॉट बी वन, शी इज नॉट अ गॉड, राइट, वो हमेशा सही नहीं हो सकती है, तो वो भी अपनी गलती एक्सेप्ट कर सकती है. Which one of the following statements is correct in the context of multiple choice questions? Again, I'll tell you the right answer. A is the right answer. They are more objective than the true false questions. वो completely objective होते हैं as compared to true false. Because true false में आप फिर भी चीजें सोचते हो, जैसे कि assertion reason question में सोचते हो, है ना. As chairman of an independent commission on education, Jacques Delors report to UNESCO was titled. अब ये पुराना हो चुका है, इसलिए I'll tell you the right answer. 2015 में ये रिपोर्ट आई थी. C is the right answer. Learning the treasure within. तो कभी कभी ये लोग ऐसी चीजें पूछ लेते हैं, इसलिए I would suggest you to do something that is very important. NEP 2020 इतने अच्छे से लर्न कर लो कि इधर से कोई क्वेश्चन आ जाए आप कभी गलत नहीं करोगे. साथ में NCF 2023 अच्छे से पढ़ लो. ये दो चीजें अगर आपने पढ़ ली तो इट विल बी लाइक द मोस्ट बेनिफिशियल थिंग दैट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ. I want you to read the entire report of NEP 2020.
हायर एजुकेशन के लिए NEP 2020, एक एक वर्ड जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, कमीशंस और ये सारी चीजें आ जाती हैं पेपर में हर बारी। NEP 2020 आता ही है, वाई? बिकॉज ये एक SDG गोल 4 के साथ, दैट इज एजुकेशन, उसके साथ अलाइन करता है। आई थिंक नेट नहीं आ रहा है। और तो बेसिकली आपको करना क्या है, NEP 2020 को स्पेशली हायर एजुकेशन को याद करो। वाई? बिकॉज SDG 4 है ना, गोल, दैट इज यूनिवर्सल एजुकेशन, उसके साथ ये अलाइन करता है और ये बहुत बार पेपर में आता है। सेलेंट फीचर्स, वेरी गुड, चलो ओपन हो गया है। तो यहाँ पे तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी। अब NEP 2020 इतना इंपॉर्टेंट है, उसके आपको क्या करने हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है? रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफाइंग, फॉस्टरिंग यूनिक कैपेबिलिटी ऑफ ईच स्टूडेंट। एक एक लाइन ढंग से पढ़ना। देन अकॉर्डिंग टू द हाईएस्ट प्रायोरिटी हम लिटरेसी एंड न्यूमरेसी सिखाएंगे बच्चों को ग्रेड 3 तक। फ्लेक्सिबिलिटी, नो हार्ड सेपरेशंस बिटवीन आर्ट एंड साइंस कोर्सेज, इंटरडिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन देंगे, क्रिएटिव थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग कराएंगे। देन उनको वैल्यू एजुकेशन सिखाएंगे, मल्टीलिंगुअलिज्म एंड पावर लैंग्वेज, यूज ऑफ एक्सटेंसिव टेक्नोलॉजी, फुल इक्विटी एंड इंक्लूजन होगी। टीचर के अंदर भी बहुत लर्निंग प्रोसेस में काम होगा। लाइट एंड टाइट फ्रेमवर्क होगा, रूटेड इन द प्राइड ऑफ इंडिया, अपनी कंट्री के बारे में बताएंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे। विजन हमारा ये है दैट हम भारत को, इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। हम हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज, वैल्यूज बच्चों को सिखाएंगे और डीप रूटेड प्राइड है ये हमारा। क्वालिटी हायर एजुकेशन होगी, सो वी विल गो फॉरवर्ड। 21st सेंचुरी के अंदर हम लोग अक्रॉस ऑल डिसिप्लिन्स बहुत ज्यादा करेक्टर डेवलपमेंट करेंगे। ये सारे विजन्स, ये सारी पॉलिसीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाय 2040 ऑल हायर एजुकेशन, दैट इज HEIs, shall become multidisciplinary institutes. There shall be by 2030 at least one large multidisciplinary higher education institute in every district. ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो फॉर हायर एजुकेशन क्या हो जाएगी, वोकेशनल एजुकेशन की 26 जो 2018 में थी वहां से चेंज होके 50% हो जाएगी। आधे से ज्यादा पॉपुलेशन हमारी कंट्री की वोकेशनलाइजेशन सीखेगी। ग्रोथ होगी पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में। ऑटोनॉमस डिग्री एंड ग्रांटिंग कॉलेजेस स्टार्ट करेंगे। रिसर्च इंटेंसिव इंस्टीट्यूट्स होंगे। मल्टीपल फैसिलिटीज लाइक ओपन डिस्टेंस लर्निंग भी होगा। एफिलिएटेड कॉलेजेस ओपन होंगे। एंड हम क्या करें, we are moving towards multidisciplinary and holistic education. There will be multiple colleges, departments of language, academic bank of credit, 4 years of degree with research works, MERUs, multidisciplinary education and research universities will be opened. Then हमने choice based credit system start किया है. Today you are going to study about choice based credit system also. देन हम लोग क्या करेंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट प्लान स्टार्ट हुआ है। हम लोग इंटरनेशनलाइजेशन करेंगे, वन नेशन दूसरे नेशन के साथ सेम स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर सकता है। फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, फैकल्टी जो भी एनर्जाइज रहे उनको भी पढ़ाएंगे। देयर विल बी मल्टीपल गवर्नमेंटल स्टेप्स जहाँ पे हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्टार्ट करके बच्चों को पढ़ाएंगे। ये पूरा PDF इतना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इतने क्वेश्चंस आते हैं। हमने बोला है हम नेशनल रिसर्च फंड स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हम पीयर रिव्यूड ग्रांट्स जर्नल्स के अंदर मल्टीपल रिसर्च वर्क करेंगे, बिकॉज वी हैव टू वर्क ऑन आवर रिसर्च एरियाज। नेशनल एग्रीडेशन काउंसिल स्टार्ट हुआ है जहां से हम हर यूनिवर्सिटी को एग्रीडेशन भी देंगे। देन हम लोगों ने पूरे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI को डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक किया है। फर्स्ट वर्टिकल है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेशन काउंसिल, देन है हमारे पास नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल, थर्ड है हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, देन वी हैव general education council, and lastly we have we have independent verticals for regulation, aggregation and funding, so that we can go forward and do professional education. ये पूरी PDF बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख लो मैंने क्या टाइप किया है, इस पूरी PDF को पढ़ना आज आपका होमवर्क है। अगर ये आपने नहीं पढ़ा तो ये आपका लॉस है। NEP से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, दिस इज समथिंग आई कैन गाइड यू।
what are the requirements of good teaching? good teaching की requirements क्या है? A is the right answer. सारी good teaching की requirement है, diagnosis करती है टीचर, डायरेक्शन दिखाती है आपको, रेमेडीज देती है एंड फीडबैक देती है. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसीलिए हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, है ना, इसीलिए ही हम थोड़ा जल्दी करने का ट्राई कर रहे हैं. यूजिंग द सेंट्रल पॉइंट of the classroom communication as the beginning of a dynamic pattern of ideas is preferred to as. आप क्या कर रहे हो, आप स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द क्लास को यूज कर रहे हो. एक आपने टॉपिक ले लिया और इससे आपने डाइवर्स टॉपिक्स डिस्कस करे, एक डायनेमिक पैटर्न इन्वॉल्व किया. इसे क्या कहते हैं? सिस्टमेटाइजेशन, is it problem orientation, idea protocol और mind mapping. so this is called as mind mapping. इसे हम क्या कहते हैं? माइंड मैपिंग. तो एक कॉन्सेप्ट से आप मल्टीपल कॉन्सेप्ट सीख लेते हो, दैट इज माइंड मैपिंग. जैसे अभी मैंने आपको बताया, अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे बोर्ड पे पॉल्यूशन, है ना, और आपने आके अलग अलग टॉपिक्स ऐड कर दिए पॉल्यूशन के बारे में, सो ये एक माइंड मैप तैयार हो गया है. इसको हम लोग और क्या कहते हैं? यहाँ पे टेक्निक ब्रेनस्टॉर्मिंग यूज हो रही है, माइंड मैपिंग, कॉन्सेप्ट ओरिएंटेशन. ठीक है, सो डी बिकम्स द राइट आंसर. Which of the following is the highest level of cognitive ability? क्या करते हैं हम यहाँ पे? ये है हमारी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी. ब्लूम्स टेक्सोनॉमी याद करो, सबसे ऊपर टिप पे हम क्या करते हैं? वी क्रिएट समथिंग न्यू. व्हाट डू वी डू? वी क्रिएट समथिंग न्यू. ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आई होप सबको याद है. क्या था ब्लूम्स टेक्सोनॉमी? ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, देखो हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं. सबसे ऊपर क्या हो रहा है? क्रिएटिंग. यहाँ पे रिवाइज्ड भी याद रखना. सबसे पहले ब्लूम ने क्या बोला? नॉलेज मिलती है, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन. लेकिन एंडरसन जो उनके स्टूडेंट ही थे, उन्होंने क्या कर दिया? 2001 में इसको रिवाइज कर दिया, नाउन से वर्ब दे दिए. तो रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालिसिस, इवैल्यूएट एंड क्रिएट. तो अब हाईएस्ट कौन से होते हैं? नीचे वाले लोएस्ट होते हैं, ऊपर वाले हाईएस्ट होते हैं. सो यहाँ पे हाईएस्ट क्या है? व्हाट इज द हाईएस्ट वन? What is the highest one? We have knowing, analyzing, understanding and evaluating. यहाँ पे फिर देखो, what is the last one? Evaluation. तो right answer क्या हो जाएगा? D. right answer क्या है? D. highest और lowest याद रखना, very very important. Which of the following factors does not impact teaching? Teachers' knowledge, classroom activities that encourage learning, socio-economic background of teachers and students, and learning through experience. Which of the following factors does not impact teaching? So the right answer is C. C right answer है. Socio-economic backgrounds of teachers and students. Which of the following statements about teaching aids are correct? टीचिंग एड्स के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? बी इज द राइट आंसर, दैट इज ए, बी एंड सी. दे हेल्प इन रिटेनिंग द कॉन्सेप्ट्स फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, देन दे हेल्प द स्टूडेंट्स टू लर्न बेटर, लास्टली दे मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग. ये रोट लर्निंग बिल्कुल नहीं कराते हैं. ठीक है, सो विद दिस वी आर डन विद द क्वेश्चंस. लेकिन मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखानी है आज, जो है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ओनली. ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अंदर लुक एट दिस कॉन्सेप्ट. सो सबसे पहले जो पिक्चर हमने देखी थी, या ओके, लुक एट दिस. सो सबसे पहले हम क्या करते हैं? वी रिमेंबर थिंग्स. वी डू व्हाट? वी रिमेंबर थिंग्स. हम किसी चीज को रिमेंबर करने का ट्राई करते हैं. उसके बाद हम उसे अंडरस्टैंड करते हैं. व्हाट डू? वी ट्राई टू एनालाइज, वी अंडरस्टैंड इट. उसके बाद अंडरस्टैंड मतलब हम उसे डिकोड करेंगे, उसके उसको अप्लाई करके देखेंगे. देन वी एनालाइज थिंग्स, देन वी इवैल्यूएट एंड देन वी क्रिएट. क्रिएट मतलब हम उसे फॉर्म्यूलेट करते हैं, हम उसे रीअरेंज करते हैं, हम उससे कुछ नया बनाते हैं. ठीक है, सो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के 3 डोमेन्स होते हैं. क्या होते हैं? देयर आर 3 डोमेन्स. सो 3
3 डोमेन्स हैं और ये तीनों डोमेन्स काफी इंपॉर्टेंट है. दैट इज व्हाई आई विल शो यू वन पिक्चर. राइट, सो दिस इज इंपॉर्टेंट. अब ये पिक्चर देखो, यहीं से ही इसको याद करते हैं. आई होप आपको ये दिख रहा है. तो पेपर में क्या आ जाता है, लोएस्ट और आपका क्या आ जाएगा, पूछेंगे हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल. तो सबसे पहले इन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी हमारे पास 3 डोमेन्स होती हैं. थ्री डोमेन्स, इसमें से पहली डोमेन होती है कॉग्निटिव डोमेन. कॉग्निटिव डोमेन होती है मेंटल कैपेबिलिटी की. अफेक्टिव डोमेन होती है हमारे इमोशंस के साथ चीजें करने की. और साइकोमोटर डोमेन होती है काइनेस्थेटिक एक्टिविटी. क्या होती है, काइनेस्थेटिक एक्टिविटीज, मतलब आप चीजें अपने हाथ से परफॉर्म करते हो तो ज्यादा जल्दी हो जाती है. तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, मेंटल कैपेबिलिटी कॉग्निटिव डोमेन, जो कि ब्लूम ने दी थी. ये किसने दी है, ब्लूम ने दी 1984-86 के अंदर. फिर इनका एक स्टूडेंट था एंडरसन, इन्होंने 2001 में इसे रिवाइज कर दिया. ठीक है. सो ब्लूम ने बोला हम लोग कैसे आगे चलते हैं, सबसे पहले हम नॉलेज को गेन करते हैं. क्या देखते हैं, हम नॉलेज लेते हैं. नॉलेज के बाद हम उसका कॉम्प्रिहेंशन करना ट्राई करते हैं. उसके बाद उसको अप्लाई करते हैं. देन एनालिसिस, देन सिंथेसिस. सिंथेसिस क्या होता है, सिंथेसिस इज ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर पार्ट्स टू एनालाइज इट फर्दर एंड देन हम इवैल्यूएट करते हैं. लेकिन एंडरसन ने इसे चेंज कर दिया, लास्ट 2 लेवल्स को स्वैप कर दिया. प्लस हम लोग कहाँ से, नाउन से हम वर्ब्स पे आ गए है ना. तो उन्होंने ये दे दिया है बात बिल्कुल सेम. पहले हम रिमेंबर करते हैं किसी चीज को, अंडरस्टैंड करते हैं, एनालाइज या अप्लाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, इवैल्यूएट एंड देन क्रिएट समथिंग न्यू. हायर ऑर्डर, लोअर ऑर्डर याद रखना, ये सारे क्या है, लोअर ऑर्डर है. ये कोई भी बच्चा कर लेता है. ये इवैल्यूएशन, सिंथेसिस हाई ऑर्डर है, ये सिर्फ ब्रेन वाले लोग ही कर सकते हैं. ऐसे ही अफेक्टिव डोमेन के भी ऑर्डर्स हैं. सबसे पहले आप किसी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हो. तीनों डोमेन्स एक साथ होने जरूरी है एक बच्चे की ग्रोथ के लिए. तो सबसे पहले आप किसी चीज को रिसीव करते हो, फिर आप उस चीज पे रिस्पॉन्डिंग स्टार्ट करते हो. रिस्पॉन्ड करना, उसको एनालाइज करना, उसे समझना, उसे क्या कहते हैं, रिस्पॉन्डिंग. फिर आप वैल्यू, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर करेक्टराइजेशन करते हो. करेक्टराइजेशन एक हायर ऑर्डर है. क्या है, एक हायर ऑर्डर ग्रोथ है. यहाँ पे आप इंटरनलाइज कर लेते हो और चीजों को खुद ही समझ जाते हो. रिसीविंग एक लोअर ऑर्डर है. कोई भी रिसीव कर सकता है इंफॉर्मेशन, लेकिन सीख सब नहीं सकते हैं. ऐसे ही साइकोमोटर भी है, जिसमें परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्सेज, मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्सेज, अडेप्टेशन एंड ओरिजिनेशन तक हम जाते हैं. पेपर में हायर और लोअर ऑर्डर क्वेश्चन आता ही है पेपर में. इसलिए ये तीनों डोमेन्स ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अंदर आते हैं और आपको याद होने चाहिए. ये आपको पता होना ही चाहिए. दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, दोनों ही, ये तीनों ही डोमेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इन्हें समझोगे और याद भी करोगे. ठीक है, जैसे अफेक्टिव डोमेन है साइकोमोटर, या तो ये भी देख लो. जैसे कि ये तीनों डोमेन्स ओवरलैप हो रहे हैं, कोई भी एक बच्चा विदाउट ओवरलैपिंग ऑफ दीज इमोशंस आगे नहीं चल सकता है. राइट, इज दिस क्लियर? ये चीज सबको समझ आ गई है? आई होप दिस इज क्लियर. सो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की ये तीनों डोमेन्स आर देयर. सो व्हाट यू हैव टू डू, आज हमने क्लास में जो भी करा है, आप जाके सबसे पहले तो टीचिंग एड्स के बारे में पढ़ोगे. टीचिंग एड्स, जिसके अंदर आई टोल्ड यू देयर आर विजुअल, ऑडियो विजुअल एंड एक्सपेरिमेंटल लिख लो, या फिर एक्सकर्शन ट्रिप्स करके, आप फील्ड ट्रिप्स करके अलग ही जोन में जा सकते हैं. ये सारे टीचिंग एड्स करोगे. देन आई वांट यू टू स्टडी अबाउट इफेक्टिव टीचिंग. इफेक्टिव टीचिंग के अंदर ट्राई टू स्टडी अबाउट हेल्पिंग बिहेवियर्स एज वेल एज की बिहेवियर्स. ये दोनों तरीके के बिहेवियर्स आपको याद होने चाहिए, इसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं. देन आप पढ़ोगे कॉम्पिटेंसीज ऑफ अ गुड टीचर. एक अच्छी टीचर की कॉम्पिटेंसीज. एक अच्छी टीचर कैसी होनी चाहिए, उसके अंदर अलग अलग कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए. जैसे टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, 21st सेंचुरी की गुड टीचर टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसीज रखेगी, साथ में क्या रखेगी, पर्सनल रखेगी.
पर्सनल एंड साथ में सोशल कॉम्पिटेंसीज भी रखती है. नाउ देयर वाज दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेट, जितना ज्यादा पिक्चर्स से याद करोगे उतना ही आपके लिए भी इजी हो जाएगा. ओके, आई होप हमने कॉम्पिटेंसीज ऑफ अ मॉडर्न टीचर, या तो ये एक रिसर्च पेपर है जो बात करता है कि एक 21st सेंचुरी टीचर के अंदर कैसी स्किल्स होनी चाहिए. तो ओह गॉड, टीचर कॉम्पिटेंस बिफोर एड्रेसिंग द मीनिंग ऑफ कॉम्पिटेंस वी शुड नो कि कौन सी स्किल्स, नॉलेज एंड वैल्यूज टीचर के अंदर होनी चाहिए. सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉम्पिटेंसी स्किल्स होती हैं जो आप पोजेस करते हो फॉर द परफॉर्मेंस. स्टूडेंट के अंदर क्या होनी चाहिए? स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग लॉजिकली, एस्टिमेटिंग एंड गेसिंग, टर्निंग प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होनी चाहिए एंड कोलैबोरेशन. ये तीनों बहुत बार पेपर में आ रहा है 2023 2024 में. किसी ने ये एनालाइज नहीं किया है पर कॉम्पिटेंसी से ही क्वेश्चन आ रहा है. इस बारी पूरा टाइम पेपर में क्या आया? सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग. उसके अंदर मेमोरी, बीइंग एसर्टिव और पर्सनल चेंजेस ही पेपर में पूछा गया, जैसे सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ एस्टीम बोला जा सकता है. डायरेक्टली आपको कोई नहीं बताएगा कहाँ से पेपर आ रहा है, बट यहीं से पेपर आ रहा है. और उसके बाद हमने देखा कोलैबोरेशन, तो कलेक्टिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, है ना, परसुएडिंग अदर्स, वर्किंग इन अ टीम, डिस्कशन एक्सेट्रा. दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड टू डू. देन इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च, चाइल्ड को गैप्स कम करने हैं, नोट्स बनाने हैं, सर्वे करना है, प्लान करने हैं एक्सेट्रा. अब टीचर की कॉम्पिटेंसीज, द टीचर स्किल्स एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग कॉम्पिटेंसीज ऑफ प्रोफेशनल ग्रोथ आर, टीचर को कॉम्प्लेक्स पेडागोजिकल ड्यूटीज करनी है, टीचर को वेल स्पोकन होना चाहिए विद गुड मेंटल हेल्थ. सो टीचर की पेडागोजिकल एबिलिटीज शुड बी देयर. व्हाट इज पेडागोजिकल एबिलिटी? करेक्टराइज बाय डिटेल्ड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, पेडागोजिकल एबिलिटी है. ऐसे ही पेडागोजिकल स्किल क्या है? प्रेफर्ड टीचिंग स्किल उस सब्जेक्ट की. पेडागोजिकल क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन टीचर रखेगी तभी आगे बढ़ पाएगी, बिकॉज आजकल पेडागोजिकल डिटेल टीचर के लिए जानना जरूरी है. टीचर को पता होना चाहिए कि मैं क्लास में कैसे स्टूडेंट को ढंग से पढ़ा सकती हूँ, किस तरीके से, क्या टूल्स यूज करके मैं स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ा पाऊंगी. ठीक है, पेडागोजिकल इनोवेशन के बारे में काफी है. 21st सेंचुरी टीचिंग कॉम्पिटेंसीज, टीचर शुड डेमोन्स्ट्रेट लीडरशिप, टीचर शुड लीड द क्लासरूम बाय इवैल्यूएटिंग द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, असेसमेंट डेटा मेजर करना चाहिए, क्लासरूम में इंस्ट्रक्शनल प्लान्स, फैसिलिटीज होनी चाहिए, डेंजरस बिहेवियर से बचना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए लीडरशिप इन द स्कूल ऑल्सो. द टीचर्स शुड बी वेरी प्रोफेशनल, advocate the students. The teacher should create a very respectful environment. The teacher should treat the students with very sincerity. Diversity होना चाहिए स्कूल के अंदर. The teacher should adapt to the benefits of their students. The teacher should know the content that she has to teach. The teacher should be extremely literate. She should know what to do, when to do. उनके पास अपनी skills होनी चाहिए. The teacher should facilitate learning for the students. No matter what, teacher का एक ही काम है, acumen to the versatility. Teacher should plan and instruct in the most possible manner. The teacher has to display awareness. The teacher has to reflect. The teacher has to reflect on their own practice. The teacher has to reflect on their practice and this will make a teacher a good teacher. वो ज़्यादा अच्छे से analyze कर पाएंगी, एक 21st century teacher बन पाएंगी. ठीक है, I hope this is clear, right? So ये सारी चीज़ें important है, ये document important है. Competencies लिख के एक बारी इसे पढ़ने का try कर सकते हो आप, right? तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे. नेक्स्ट क्लास में आगे चलेंगे और सेट्स ऑफ क्वेश्चंस करेंगे. सो एक टॉपिक से हमने इतने सारे टॉपिक्स कर लिए हैं. आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग. आई विल देन
स्टार्ट, आई विल देन जस्ट स्विच ऑफ द कैमरा, क्लास को एंड करूंगी। पर ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ लेना जो मैंने आपको बोला है, इनको प्लीज पढ़ने का ट्राई करना, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।